Hello everyone. Today's video is all about rejection and student visa rejection. That is what I can see everywhere in Australia. Every news is covering about the student visas that are getting rejected in Australia. And countries that are most affected by this are India, Nepal and Pakistan. So even if the visa is not getting rejected, there is slow processing and universities are asking students to withdraw their applications. Today's video will cover topics on why visas are getting rejected, what to do to avoid visa rejection, and what can be done if your visa is already rejected. So stay tuned. सिडनी मॉर्निंग हर्ल्ड जो यहाँ का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है एंड दे राइट ब्लॉग्स एज वेल. Visas are being rejected and there is a 20% decrease in student visas application grant. And countries that are most affected with this is India, जहाँ से second most number of student visa applicants आते हैं. उसके बाद आता है नेपाल, जहाँ से third most highest student visa applications आते हैं. The visas are not being rejected. Visa processing बहुत slow हो गया है. I remember talking to students. For them, visa was granted in just 24 hours after their medical was done. And अभी के टाइम पे they are taking even more than a month to grant a student visa. They have divided colleges based on risk categories. So जिस भी colleges के students के सबसे ज़्यादा visa refusals हुए हैं या फिर उन्होंने overstay किया है अपने visa के time से, तो उस कॉलेज को उन्होंने हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है. एंड जितने भी कॉलेजेस हाई रिस्क कैटेगरीज में उनकी वीजा प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो रही है. द टायर 1 कॉलेजेस आर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, फेडरेशन यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, in no particular number, and the ones displayed on the screen, you can have a check on that. There is also a good news for students, those who are planning to come to Australia, that universities here are already highlighted Australian government saying that they already had a revenue loss of $310 million. So ये लोग इस strategy को इतनी लंबे तक continue नहीं कर सकेंगे. There will definitely be a strategy change, which is a good news, definitely a good news. और इस strategy change में हो सकता है कि they'll give more वैल्यू और क्रेडिट टू पर्टिकुलर कोर्सेज, बट वो क्लियर होने के बाद ही पता चलेगा कि व्हाट स्ट्रैटेजी दे विल कम अप देयर. सो we'll continue to see why visas are getting rejected, as government here is stating that the main reason is growing Australian population. Since COVID has affected and after COVID the Australian population has increased like a lot, and there are a lot of migrants that has come, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी क्राइसिस हो रहा है. रेंटल भी बहुत ज़्यादा चला गया है, लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं एंड बाइंग पावर जो है वो रिड्यूस हो रही है. दिस इज व्हाट द मेन रीजन दैट दे हैव स्टेटेड. अनदर रीजन इज लाइक दे वांट टू एंश्योर अ फेयर गो इन द वर्क प्लेस बाय कॉम्प्लीमेंटिंग द जॉब. अभी क्या हो रहा है कि पीपल दोज हु आर कमिंग फॉर स्टूडेंट वीजा, उनकी इतने ज़्यादा है कि सबको जॉब नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. सो व्हाट दे आर प्लानिंग इज टू गिव स्टूडेंट वीजाज टू पीपल फॉर द ऑक्यूपेशन दैट दे आर श्योर दे विल गेट जॉब फॉर. यहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड है, तो ये सब चीज़ें ओवरकम करने के लिए कि सबको फेयर चांस मिले और सबको जॉब मिले आफ्टर दे कंप्लीट देयर स्टडीज हेयर, तो इस वजह से भी इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन किया है. एंड दे आर ऑल्सो चेकिंग प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स. सो इफ पीपल डोंट हैव गुड प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स, उधर भी ये लोग वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं एंड दे थिंक दैट कि उन लोगों को भी यहाँ आने के बाद जॉब मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी. एंड ऑल्सो SOPs जिसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, and if people are not able to state clearly that their sole purpose to come to Australia is to study in their SOPs, वहाँ पर भी वीजा बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं. and the government has adopted the system out of concern that some colleges has notified government saying that बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके ऐसे आ रहे हैं जो जिनका सोल पर्पस यहाँ आने का जॉब करना ही है, पैसे कमाना ही है और स्टडीज नहीं है. इस वजह से भी ये माइग्रेशन स्ट्रैटेजीज लाई गई हैं.
एंड अनदर रीजन इज कि यहाँ पे लोग अपने जो प्रीवियस स्टडीज है, क्वालिफिकेशंस है, उनके बेसिस पे कोर्स ले रहे हैं, बट यहाँ के जॉब कर रहे हैं। 2 साल का कोर्स है, 2 साल जॉब करते हैं, बाद में टीआर लेते हैं, उस टीआर पे भी जॉब करते हैं और फिर किसी कोर्स में स्विच कर लेते हैं टू एक्सटेंड देयर स्टे हियर इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो सब चीजों को एलिमिनेट करने के लिए ये सारे लॉज लाए गए हैं एंड एग्जैक्ट रीजंस आर स्टिल नॉट क्लियर, बट ऐसा बोला जा रहा है कि लोगों की होम कंट्रीज में और यहाँ पे जो जॉब डिस्पैरिटीज है उसकी वजह से भी ये सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड वीजा रिजेक्शन। तो यू शुड पास जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, और जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि यू शुड डेमोन्स्ट्रेट योर हायर सेविंग्स। आपकी सेविंग्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी एनहांस्ड इंग्लिश होनी चाहिए एंड आपके प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप वो सब करते हो तो आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। एंड what else you can do, like to meet all these criteria, what you can do is you can start early, you can prepare all the documents, अपने डॉक्यूमेंट्स को थॉरो गो थ्रू कर सकते हो कि डू यू हैव इनफ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको जेन्युइन स्टूडेंट की कैटेगरी में यहाँ पे रखेगा। नेक्स्ट कम इज यू शुड डबल चेक योर डॉक्यूमेंट्स दैट दे आर कंप्लीट, और कोई भी चीज उसके अंदर कम तो नहीं है कि जिसके चांसेस आपके, जिसकी वजह से आपके चांसेस रिजेक्शन के बढ़ जाए। एंड आफ्टर दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। आप यहाँ पे मैंने बहुत नोटिस किया है कि कई लोग होते हैं जो अपना वीजा अप्लाई करते हैं, अपने बैंक में अकाउंट में पैसे रखते हैं, 6 मंथ्स की स्टेटमेंट दिखाते हैं, वीजा अप्लाई करते हैं और फिर जैसे ही उनका वीजा आ जाता है वो पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। उसकी वजह से भी बहुत सारे वीजा रिजेक्शंस हुए हैं और लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। तो व्हाट यू कैन डू इज आप अपने अकाउंट में पैसे रखो, 6 मंथ्स की स्टेटमेंट, आपके वीजा आने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ आने के बाद भी आप अपनी जॉब कुछ स्टार्ट कर दो, आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, उसके बाद आप बेशक विड्रॉ कर लो। तो इतने टाइम के लिए तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में पैसे इंडिया में होने चाहिए दिखाने के लिए। उसके बाद ये होता है कि जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट स्टूडेंट, तो उसके अंदर क्या है, आपकी जो एसओपी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके अंदर आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि द ओनली रीजन यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया इज फॉर स्टडीज। अगर आप उसके अंदर मेंशन कर देते हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया आने के बाद जॉब करूंगा, ये जॉब करूंगी और उस वहां से पैसे कमा के मैं अपनी फीस भरूंगी नेक्स्ट सेमेस्टर की या भरूंगा, तो वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आपको अपनी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन दिखानी है जिसके अंदर आपको सोल पर्पस यही दिखाना है कि यू हैव इनफ इनकम सोर्स इन इंडिया, आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या आप ऑलरेडी इतना सेव कर चुके हो कि आप अपनी स्टडीज, नॉट ओनली स्टडीज, यहाँ पे रहना, खाना, कमाना और सब कुछ करना अपना विदाउट इवन अर्निंग हेयर आप बेयर कर सकते हो। तो अगर आप वो दिखा सकते हो तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद आपका क्या है कि आप प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकते हो। बहुत सारे माइग्रेशन एजेंट्स हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी एजेंसीज हैं इंडिया में जो आपका स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन में हेल्प करती है फॉर फ्री, आपकी कोई कॉस्ट भी नहीं लेती। देयर आर मेनी, अगर आपको कुछ के नाम पता करने हैं तो आई कैन सजेस्ट यू फ्यू नेम्स। मतलब मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा उनके साथ कोई टाई अप नहीं है, बट आई नो पीपल दोज हु हैव कम टू ऑस्ट्रेलिया थ्रू दोज कंसल्टेंसीज, सो मैं उस चीज में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। एंड द लास्ट थिंग इज अप्लाई फॉर टायर 1 कॉलेजेस। अगर आप टायर 1 कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो, आपकी वहां से हो सकता है आपके पास ऑफर लेटर ना आए, बट वीजा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड व्हाट टू डू इन केस योर स्टूडेंट वीजा इज ऑलरेडी रिजेक्टेड। तो उस केस में अगर आप ऑन शोर हो, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हो और आपका स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट हो रहा है, तो आप अपील कर सकते हो, जिसके अंदर आप पूरा जेन्युइन प्रूफ दे सकते हो कि मैं स्टडीज करने वाला हूँ एंड माय सोल पर्पस to apply for this visa is for studies and I'm not only extending my stay, मैं यहाँ स्टडीज करने के लिए ही वीजा अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप ऑफशोर हो तो आप अपील नहीं कर सकते, आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। और रीअप्लाई करने के लिए कोई ऐसे टाइमलाइंस नहीं है कि आप 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कर सकते हो। उसके अंदर ये है कि आप कभी भी दोबारा कर सकते हो रीअप्लाई, एंड रीअप्लाई करना इज ज्यादा चीपर देन टू अपील। तो आपके लिए एक तरीके से वो एडवांटेज भी कंसीडर हो सकता है। और जब आप रीअप्लाई करो तो मेक श्योर कि आपका जो प्रीवियस रिजेक्शन जिस रीजन की वजह से आया है, आप उसको थोरो एक्सप्लेन करो कि वो आपका रीजन नहीं था
और अगर आपका जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से आपका रिजेक्शन है तो आप अपने बैंक अकाउंट में अच्छे से दिखाओ। जैसे मुझे एक एग्जांपल पता है, एक मेरा फ्रेंड था, उसके पास एफडीज थी लेकिन अकाउंट में बैलेंस इतना नहीं था, तो उसका रिजेक्शन आ गया था इसी वजह से कि फाइनेंशियल प्रूफ्स नहीं दिखाए। बट आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एफडीज को तुड़वा के अपने अकाउंट में पैसे डलवाओ और फिर आप अपना वीजा रेज करो सेइंग दैट मेरे अकाउंट में पैसे हैं, दीज वर माय एफडीज और मैंने ये विड्रॉ किया है, मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, ओनली टू कम एंड स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बट एज सुन एज आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस आई विल शेयर इट विद यू गाइज, एंड to stay updated with my latest post, I would request you to please subscribe my channel and like my video. Thank you so much.